Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, praise you, praise you. Amen. We greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सभी को अभिनंदन करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। It's just a joy to be with you one more time. और बड़े आनंद की बात है इस समय पर आपके बीच में होना। But this is not a gospel meeting. और ये कोई सुसमाचार की सभा नहीं है। Today and tomorrow I'm going to talk something which is very serious. It's going to be a blessing for your family, especially blessing for your children. और आज और कल जो आपको खास तौर पे कुछ सिखाया जाएगा ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए एक आशीष के रूप में होगा। I didn't just prepare today so that I can come and teach. और आज तैयारी करें ताकि आप कुछ सिखा सकें। I prepared it for years. और कई सदियों सालों से इनकी तैयारी हमने की I'm है। going to teach about parenting, biblical parenting. और जो बाइबल पर आधारित परिजनों का काम कैसे होता है, कैसे पितृत्व किया जाता है, इसके बारे में। One of the blessing that God gave Abraham is, in you all the families of the earth will be blessed. और एक आशीष जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था वो यह था कि तुझ में इस पृथ्वी के सारी जातियां आशीष पाएंगी। In you, through you, all the families of the earth will be blessed. और तुम्हारे जरिए इस पृथ्वी के सारे जो परिवार हैं वो आशीष पाएंगे। I strongly believe. और मैं इसमें विश्वास करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Through us, all the families of the earth will be blessed. और हमारे जरिए इस पृथ्वी पर के सारे परिवार आशीषित होंगे। How many of you believe this? और कितने विश्वास करते हैं If you इसमें? believe this, यदि आप इसमें विश्वास करते हो tell in English after me. और अंग्रेजी में बोलिए हमारे पीछे। Through me, all the families of the earth will be blessed. और बोलिए मेरे जरिए, जोर से बोलिए मेरे जरिए इस पृथ्वी के सारे परिवार आशीषित होंगे। Hallelujah. हालेलुया। How it's going to happen? और कैसे ये होगा? It's going to happen through His word. उसके वचन के जरिए ये होगा। Hallelujah. हालेलुया। The families will be blessed through the word of God. और परिवार आशीषित होंगे परमेश्वर के वचन के जरिए। Blessings comes through the word of God. आशीषें आती हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। If you know the word, you teach the word, they'll be blessed. और यदि आप वचन को जानते हो, अगर वचन को सिखाओगे, आशीषें आएंगी। Oh, this is a winner's manual. और ये बहुत अच्छी जैसे मैनुअल है। Hallelujah. We all know that language, how to use the manual, how important it is, we know it. और हम सभी लोग जानते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण मैनुअल है, निर्देश पुस्तिका है इस I बारे में। remember long back after our wedding, we went to a shop, we purchased a refrigerator. और बहुत समय पहले ऐसा हुआ था, मैं किसी दुकान में गया था रेफ्रिजरेटर खरीदने को। That guy gave a clear instruction, sir, look at the manual, you have to follow all these और instructions. उन्होंने ऐसा कहा कि श्रीमान इस मैनुअल को देखो, इन सारी चीजों के अनुसार आपको चलना है। And he asked me, where do you live? और कहाँ तुम रहते हो? Which floor you are living? और कौन से मंजिल पर तुम रहते हो? I said, it's the second floor. No, be careful. He showed one diagram. Look at this refrigerator. This is a clear instruction, especially when you are lifting it up. When you bring it down, you should not tilt it. If you tilt it, we are not responsible. It will land up in problem. और उन्होंने ऐसा बताया कि नहीं नहीं, देखिए इसमें जो भी निर्देश लिखा हुआ है उस सारी चीजों के जरिए ही आपको करना होगा। अगर ऊपर चढ़ाते समय अगर कुछ खराबी आ गई तो इसके जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे। You should not tilt it. You should not tilt it totally. और इस तरह से झुकाना नहीं है If you तुम्हें। tilt it totally, then it will not work. और यदि इस तरीके से तुम करोगे तो ये काम नहीं करेगा। I just saw the diagram again and again read it. I was very careful because it's a new refrigerator. Make sure I have extra people to lift and properly keep it up. और मैंने ऐसे बार बार उस निर्देश पुस्तिका को देखा और मैंने इस बात को समझा कि सही प्रकार से मुझे रखना होगा। Every time I shift the house, I remember in the initial stages we just keep changing the house. If you don't like, come on, forget it. Let's go to one more flat. If you don't like, forget it. We'll go to one more place. Keep changing it. Almost few houses I changed for a few years, and every time when I shift, I'll make sure I remember what is written in the manual. I follow it. I give instruction to the people. और जब भी हम ऐसे अलग जगह पर कहीं जा रहे होते हैं तो निर्देश पुस्तिका में जो कुछ भी लिखा है उसकी हम पूरी तरह से छानबीन और पूरी तरह से जानकारी निकालते हैं। I just kept on doing it. Maybe after 10 years, last time, that I shifted the house, but I forgot, about this instruction. And we just told the boys, come, let's shift. They shifted everything. और 10 साल पहले ऐसा हुआ था कि हमने कहीं और घर लिया था तो हमने उस लड़के से कहा था और हम इस बारे में भूल गए थे उस निर्देश पुस्तिका के I बारे में didn't कैसे इस्तेमाल bother करना to है। give instruction what is written in the manual. और यही हमारा स्वर्गीय पिता हमें निर्देशन देता है कि क्या जो कुछ लिखा हुआ है इसमें। Most of those who came to help me, our church youth, they are so excited, because they are helping me. They took the refrigerator, they made it upside down, all the directions they turned it exactly. When they carried, they put it upside down, they lifted, they brought it up.
again they kept it straight. तो उन्होंने सब प्रकार से उन्होंने सहयोग किया कि उन्होंने सही प्रकार से उठाया, कैसे नीचे करना है, सारी बातों में उन्होंने सहयोग किया, उन्होंने मदद की। What is written in the manual, we should not do it exactly. They have done it. और जो कुछ भी मैनुअल में लिखा हुआ था बिल्कुल वैसा ही किया। What is the result? इसका परिणाम क्या निकला? Refrigerator is not working. और रेफ्रिजरेटर काम नहीं करने लगा। Why it's not working? क्यों नहीं काम कर रहा था? Manual is not followed. और मैनुअल का सही प्रकार से पालन Why नहीं it किया? is not followed? क्यों पालन नहीं किया गया? First year, second year, नया है ना, नया है, the new पहला they साल, took it. दूसरा साल तक ये नया After है ना, नया है। it is my 10 years old. और अभी तो 10 साल पुराना हो गया है। No, my friend. नहीं नहीं दोस्तों, This is a manual for your family. और ये आपके परिवार के लिए निर्देश पुस्तिका है। Whether it is a new wife or old wife, you have to follow the manual. चाहे आपकी पत्नी नई हो या पुरानी हो, आपको निर्देश पुस्तिका का जैसा पालन जरूर करना है। If you don't follow the manual, anytime anything can happen. यदि आप मैनुअल का पालन नहीं करोगे तो किसी भी समय कुछ भी हो सकता The है। same way for children also, to bringing up, it's written in the manual. You have to follow the instruction. और ठीक उसी प्रकार से बच्चों के लिए भी है, अगर उनका पालन पोषण सही प्रकार से आपको करना है तो If मैनुअल में you लिखा हुआ जो love भी your children, follow the manual. I'll tell you, they will be the best children. They'll be the best citizens. और यदि आप उस मैनुअल का इस्तेमाल करके उसमें लिखी बातों का पालन करके अपने बच्चों का पालन पोषण करोगे तो वे सबसे बेहतर आपके बच्चे बनेंगे और अच्छे नागरिक बनेंगे। Another 2 days, today and tomorrow, I'm going to condense it. I'm going to make it as clear as possible. Understand it, buy the CDs and go through it again and again. Maybe you can do research in the Bible by taking all these quotations. I assure you, if you put this word into practice to train up your children, definitely your children will be in the creamy layer in the days to come. और मेरे पास सिखाने के लिए 2 दिन है। अगर आप जो कुछ मैं सिखाऊंगा उन सारी बातों को इस श्रृंखला के जरिए आप समझोगे, सीखोगे, उसका पालन करोगे तो आप अपने बच्चों का सही प्रकार से पालन पोषण कर सकेंगे और वे उत्तम बच्चे, बड़े अच्छे बच्चे बनेंगे। I encourage you come tomorrow also. और मैं आपको ये उत्साहित करता हूं कि आप कल भी आइएगा। The same thing I'm going to continue. और इसी बात को मैं कल भी जारी But रखूंगा। today I will tell you how important it is for them to have a knowledge and how to train up the children. और आज मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि बच्चों का पालन पोषण कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी रखना क्यों जरूरी है। Hallelujah. Hallelujah. If the children are not born again, how to lead them? That's very important. और यदि आपके बच्चे नए जन्म नहीं पाए हैं तो कैसे उनकी अगुवाई करें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। Turn your Bible to book of Hosea, 4th chapter. और आइए अपने पवित्र शास्त्र में निकालेंगे होशे की पुस्तक में 4था अध्याय। Book of Hosea, 4th chapter. We'll read from verse 1 to 6. होशे की पुस्तक में 4था अध्याय उसके 6वें पहले वचन से 6वें वचन तक देखेंगे। Can you read in Hindi, brother, please? 4th chapter, verse 1 to 6. आइए निकालें इस समय होशे की पुस्तक में 4था अध्याय पहले वचन से 6वें वचन तक पढ़ेंगे इस समय। हे इज़राइलियों, यहोवा का वचन सुनो। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में न तो कुछ सच्चाई है, न कुछ करुणा और न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। यहाँ शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघ कर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। इस कारण यह देश विलाप करेगा और मैदान के जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी कुम्हला जाएंगे और समुद्र की मछलियां भी नष्ट हो जाएंगी। 4था वचन, देखो कोई वाद विवाद न करे, न कोई उलाह न दे, क्योंकि तेरे लोग तो याजकों से वाद विवाद करने वालों के समान हैं। तू दिन दोपहरी ठोकर खाएगा और रात को भविष्यवक्ता भी तेरे साथ ठोकर खाएगा, और मैं तेरी माता का नाश करूंगा। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। Here it says there's so much violence is there because there's no truth. और देखिए यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हिंसा की बातें, क्योंकि कोई सच्चाई नहीं There है। is no truth, no knowledge of God in this land. और इस देश में जैसा कि कोई सच्चाई नहीं, ना परमेश्वर का ज्ञान है। So if there is no truth, no knowledge of God, what is the result? What is the impact in the society? और जब कोई सच्चाई नहीं होती, जब कोई परमेश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता तो समाज में क्या असर पड़ता They है were इसका? swearing, lying, killing, committing adultery, stealing, all these things are happening. और देखिए शाप देना, झूठ बोलना, वध करना, चुराना, व्यभिचार करना, ये सारी चीजें होती रहती हैं। Even the whole creation suffers because of no truth. और क्योंकि सच्चाई नहीं, इसके वजह से सारी सृष्टि जो है दुख उठाती है। And verse 4, if you read, they blame each other. और देखिए अगर 4थे वचन पर आप पढ़ें तो आप पाएंगे वहां एक दूसरे पर उलाना देते हैं। But the problem has to do with the spiritual person. मगर समस्या जो है वो व्यक्तिगत तौर पर निपटना जरूरी है। Actual problem is with the spiritual leaders. They are not given the truth because there is no truth of God's word. All these things are happening in the society. और देखिए क्योंकि आत्मिक अगुवा सही बातों को नहीं सिखा रहा है, सच्चाई को वो नहीं सिखा रहा है, इस वजह से ये सारी चीजें जो समाज में हो रही हैं। Finally, they makes a statement about
my people are destroyed because of the lack of knowledge of God's word. और फिर आखिर में जो ये वचन ऐसा कहता है कि मेरे ज्ञान के न होने से, परमेश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। If knowledge is there, blessings are there. और यदि ज्ञान हो तो आशीषें भी होंगी। If knowledge is there, destruction is there. It comes. और यदि ज्ञान न हो तो वहां पर विनाश आ जाएगा। And it affects the children. और ये बच्चों पर भी इसका असर It says, पड़ेगा। if you forget the law of your God, I will forget your children. और ये प्रभु कहता है कि यदि तू मेरे व्यवस्था को छोड़ दे तो मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। There is no truth. इसमें अगर कोई सच्चाई न हो Violence is there in the society. तो समाज में हिंसा आ जाती है। Ultimately, who is affected? और आखिर में किस पर इसका प्रभाव पड़ता है? Children are affected. बच्चों पर इसका असर The पड़ता है next generation is affected. और अगली आने वाली पीढ़ी पर इसका असर पड़ता We है। have to make sure our children, they don't get affected by things what's happening outside. और हमें आश्वासन करना है कि हमारे बच्चों पर बाहर इस प्रकार के सारे असर न पड़ें। Our children should know the knowledge. They should have the truth. और हमारे बच्चों को ज्ञान जानना चाहिए, उनके पास सच्चाई होनी चाहिए। Why? How they will receive the truth? और कैसे वो सच्चाई को पा सकते हैं? Proverbs 1st chapter verse 7. और निकालिए नीति वचन का पहला You अध्याय have 7वां heard it वचन। many times in all your schools, all the notice board, thought for the day. Everywhere they have written the scripture. और हो सकता है कि आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड पर अन्य जगह पर इस आयत को लिखा हुआ पाते A हैं। very familiar scripture. और बहुत ही जाना पहचाना सा ये आयत The है। fear of the Lord is the beginning of the knowledge. और प्रभु का भय मानना ज्ञान का आरंभ है। Hallelujah. हालेलुया। The fear of the Lord is the beginning of knowledge. प्रभु का भय मानना ज्ञान का आरंभ है। Where the fear of God is there, there knowledge is there. और जहाँ पर प्रभु का भय होता है वहीं पर ज्ञान होता है। When I say fear of God, I'm not saying you should be scared of God. और जब प्रभु का भय मानने के बारे में हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि When परमेश्वर it से हमको says डरते रहना है। fear of God means giving reverence and respect to God. और प्रभु का भय मानने का मतलब है परमेश्वर को आदर और सम्मान देना। I worked as a teacher before I came to ministry. और मैं एक टीचर हुआ करता था इससे पहले कि मैं सेवकाई में आया। I know there are so many teachers here. मैं जानता कि अनेकों टीचर यहाँ पर And हैं। all of us have studied in the school once upon a time. और कभी अनेकों लोग जो पढ़ते थे या फिर संघर्ष करते थे। It's a usual scene. Any school, first one period gets over. When the teacher goes out, the noise, everybody talks. And by the time one more teacher comes, it stops. और देखते हैं कि जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है, जब वहां पर आवाज घंटी बजती है तो एक टीचर जाते हैं और जाते ही आवाजें आने लग जाती है। फिर दूसरा कोई टीचर आ रहा होता है तो वापस सब शांत हो जाते हैं। When that bell rings, the 5 minutes you stand outside the school building and you listen, such a big noise you can hear. और यदि आप वो बेल बजने से पहले अगर बाहर खड़े होकर आप इमारत के सुने तो बहुत बड़ी आवाज आएगी। The moment the teacher comes, they stop it. और जिस क्षण टीचर जी आ जाते हैं वो चुप हो जाते हैं। It's not exactly they are scared of the teacher. They give respect. They give reverence. No, he has come. She has come. Let's keep quiet. और इसका मतलब ये नहीं कि वो डर रहे हैं, मगर इस वजह से कि उनके टीचर जी आ गए हैं तो उनका सम्मान करें, उनका आदर करें। इस बात में चुप Fear होते हैं। is nothing but giving reverence and respect. और ये भय मानना कुछ और नहीं मगर आदर सम्मान देना ही है। Our children should be taught to give reverence to God and respect to God. और हमारे बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि वो परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर को आदर और सम्मान दें। Only when they give reverence to God and respect to God, then the knowledge comes. और केवल जब वे परमेश्वर का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, तभी ज्ञान आएगा उनमें। Knowledge doesn't come first. और ज्ञान पहले नहीं आता, Blessing doesn't come first. आशीष पहले नहीं आती। First is they should be trained to give reverence and respect. Then the knowledge comes. Then the blessing comes. और सबसे पहले उनको आदर करना, सम्मान करना सीखना होगा। इसके बाद ज्ञान आएगा और इसके बाद फिर आशीषें आएंगी। Let's read some more scriptures to understand this. और आइए कुछ और आयतों को हम पढ़ेंगे इसे समझने के लिए। Deuteronomy 8th chapter, व्यवस्था की पुस्तक में 8वां अध्याय verse 5 and 6. 5वें 6वें वचन में। Deuteronomy 8th chapter, verse 5 and 6. व्यवस्था के 8वें अध्याय उसके 5वें Why 6वें we वचन में। have to train up the children in the fear of God. और क्यों यह जरूरी है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण करें प्रभु के भय मानने में। It says, thou shalt consider in thy heart that as a man chastens his son, so the Lord thy God chasteneth you. Therefore you shall keep the commandments of the Lord your God to walk in his ways and to fear him. और पढ़ेंगे 5वें वचन से, फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। About chastening, what is not chastening, how to chasten, all those things
Tomorrow I'll teach. और ये ताड़ना क्या होता है, किस प्रकार से दी जाती, इन सारी चीजों पर चर्चा हम कल करेंगे। But the kingdom principle is, मगर राज्य का सिद्धांत as जो a है, man chastens his son, the same way God chastens his children. और जैसे एक बाप जो है अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसा ही परमेश्वर अपने बच्चों को ताड़ना देता Why है। God chastens us? और क्यों परमेश्वर हमें ताड़ना देता So है? that we'll keep up the commandments of the Lord. ताकि हम प्रभु की व्यवस्था को पालन करें। Chastening helps us to obey the God's word and to fear Him. और ताड़ना करने से हमें यह बात सिखाती है कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी Is- आज्ञाओं को माने। Is that God is so cruel, He wants us to chasten us so that we will fear Him, we'll give reverence and respect to Him. क्या परमेश्वर इतना निर्दयी है कि वो हमारी ताड़ना करे ताकि हम उससे डरते रहें और डरने की वजह से हम सम्मान करें? That's not the purpose. ये इसका उद्देश्य नहीं। The purpose is, और उद्देश्य जो है, it says verse 7 to 10, if you read it, God wants to bring them the good land, God wants to bless them, God wants to give them prosperity. और यदि आप 7वें वचन से 10वें वचन तक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि परमेश्वर ने आशीष देना चाहता था, परमेश्वर ने अच्छे देश में लाना चाहता था और उनको समृद्धि देना चाहता था। Verse 10 it says, when you are eaten and are full, then you shall bless the God for the good land which He has given you. और 10वां वचन ऐसा कहता है कि और तू पेट भर खाएगा, और जब तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा, उससे तू धन्य मानेगा। God wants us to live in that lifestyle of having plenty. और परमेश्वर चाहता है कि हम बहुतायत की जीवन शैली में रहें, Everything should be more in our life. और हमारे जिंदगी में सब कुछ बहुतायत से होना चाहिए। In order to take us to that place, God wants us to fear Him and understand His truth, obey His word. और वहां ले जाने से पहले परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन का पालन करें, उसकी सच्चाई को समझें। Hallelujah. If we Hallelujah. have to understand it, or if we have to give reverence and respect to the God whom we don't know, first we should learn to give reverence and respect to the parents whom we see with our eyes. और सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि हम उसका सम्मान करें, मगर यह बात क्योंकि हमने उसे देखा नहीं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम जिन्हें देखते हैं, हम अपने माता पिता उनका सम्मान करें। Are you with me? क्या आप हमारे साथ हो? Ephesians 6 chapter verse 2 and 3. और निकालिए इफिसी की पत्री 6वां अध्याय 2-3 वचन में। Ephesians 6 chapter verse. It says, honor your father and mother, which is the first command with a promise, that it may be well with you and you may live long on the earth. और इफिसी की पत्री 6वां अध्याय के 2-3 वचन में ऐसा लिखा है, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। I have read it many times. और मैंने अनेकों बार इसे पढ़ा है। I think why we should honor father and mother. Otherwise, what connection it has to do with the और blessings? क्यों अपने माता पिता का हमें पालन आदर करना चाहिए, और ये जो आशीष के साथ जुड़ी हुई क्या बात है इसमें? When you learn to respect your parents, जब अपने माता पिता का आदर करना आप सीखते हो, you will learn to respect others. तो आप दूसरों का आदर करना भी सीखोगे, You will learn to respect the God also. तो आप परमेश्वर का भी आदर करना सीखोगे। Children usually doesn't come. They have a rebellious nature inside them. और देखते हैं बच्चे बस यूं ही नहीं आ जाते, उनके अंदर बलवा करने या The जिद्दीपन first का and स्वभाव होता foremost है। is we should train them to respect the parents, respect the father, respect the mother, respect the people in the house, elders. और सबसे पहले हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो अपने माता पिता का सम्मान करें, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें, आदर करें। You have to govern your house. और आपको अपने घर में शासन करना ही If you होगा। are involved in the ministry, Paul says, if a man doesn't know how to rule his own house, how can he govern the house of God? और यदि आप सेवकाई में शामिल हो, तो प्रेरित पौलुस ऐसा कहता है कि यदि एक सेवक घर का प्रबंध करना न जानता हो तो प्रभु की कलीसिया की रखवाली वो कैसे Why करेगा? we should teach our children to give respect? और क्यों हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो आदर सम्मान करें? Why we should teach them? और क्यों उन्हें सिखाना चाहिए हमें? There is a foolishness which is bound in the heart of the child. और देखते एक मूर्खता होती है जो बच्चों के दिलों में बनी रहती है। Proverb 22 verse 15. और नीति वचन का 22वां अध्याय 15वां वचन, Proverb 22 verse 15. नीति वचन के अध्याय 22 उसके 15वें वचन में, Foolishness is bound in the heart of the child, but the rod of correction shall drive it far from him. और वचन ऐसा कहता है कि बच्चे के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। Hallelujah. हालेलुया। Hello, are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Kids, don't get angry on me. मेहरबानी करके गुस्सा मत होइए। I'll teach your parents how to punish you, at the same time not to get angry. और सिखाया जा रहा है परिजनों की कैसे अनुशासित करना होता है बच्चों को, उसी समय पर गुस्सा न होए। About punishment, what we have to do, what Bible says, how much we should do, everything is there. Tomorrow I'll teach. और अनुशासन कैसे किया जाता है, कैसे ताड़ना दी जाती है, ये सारी बातें बाइबल में लिखी गई और कल इसकी चर्चा We करेंगे। have to understand every child, including our children who is born, they are born with a sin nature. Foolishness is bound up in the heart of the child, and only the rod of correction will drive it away from them.
और यह बात हमें समझाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इस धरती पर जन्म लिया हर एक बच्चा जो है उसमें पाप का स्वभाव है और मूढ़ता जो है उनके हृदय में बसी हुई है और केवल परमेश्वर के वचन के अनुशासन के जरिए ही उन्हें समझदार बनाया जा सकता है। Some people say, no, 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 we are like a friends, I never bet my son. I don't want to beat. I want to treat him like a friend. और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, मैं अपने बेटे का मैं दोस्त होना चाहता हूँ, मैं कभी अपने बच्चे को पीटता नहीं हूँ, बस एक दोस्त के समान बर्ताव करना चाहता हूँ। No problem. You can treat your friend like a son. नहीं, कोई बात नहीं, आप ऐसा बर्ताव कर सकते हैं उनके साथ। Your son also will treat you like a friend. और आपका बेटा भी आपके साथ मित्र जैसा ही बर्ताव And करेगा। tomorrow he will not give rest. He will bring a shame to you. और कल वो आपके लिए शर्म का कारण लेकर आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Bible says, और बाइबल कहती है, come with me to Proverbs 10th chapter verse 1. नीति वचन के अध्याय 10 उसके पहले वचन में देखो। I travel many places. अनेकों जगह पर मैंने यात्राएं की हैं। One common problem every parent has is my children, they are not studying well, they are not working well, they are not listening to us. और एक साधारण सा जो मुख्य एक समस्या जो अनेकों माता पिता बताते हैं वो ये है कि हमारे बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे, अच्छे काम नहीं वो कर रहे हैं, If I आदर ask them, संस्कार नहीं करते। what is your problem? Their problem is the children. और यदि उनसे पूछे समस्या क्या है तो वो बताएंगे उनके बच्चे समस्या है। Proverbs 10, 1, 2, 3 verses quickly I'll tell. और नीति वचन की पुस्तक में 10वां अध्याय 2-3 वचन में बताऊंगा जल्दी से। It says, a wise son makes a glad father, but foolish son is a heaviness of his mother. और वचन यहाँ पर ऐसा कहता है कि बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। 2 sons, wise son, foolish son. और 2 बेटे, बुद्धिमान बेटा और मूर्ख बेटा। Wise son makes his father glad, makes his mother glad. They are so happy, my son is wise. और बुद्धिमान बेटे के जरिए माता पिता बहुत ही खुश होते हैं, आनंदित होकर वो कहते हैं कि हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि हमारा बेटा बुद्धिमान है। But the foolish son, gives a heaviness for his mother, makes the parents to feel sad. और देखते हैं कि जब मूर्ख बेटा जो है अपने माता पिता के शर्म का वो कारण बनता है, बहुत ही परेशानी वो लाता है। Parents, listen to me. और माता पिता सुने Do हमारी। you want to be glad in future? आप भविष्य में आनंदित होना चाहते Or हो do you want to be sad? या फिर निराश होना चाहते हो? Depends on what you are going to do with your children today. और ये इस पर निर्भर है कि आज अपने बच्चों के साथ आप क्या If you करते हो। invest your time and if you do what the Bible says today, he will be a wise son. He will bring gladness to you. और यदि आज आप अपना समय निवेश करो और जो बाइबल कहती है वैसा आप सिखाओगे उन्हें, तो आप आनंदित होगे आगे No, जाकर। I don't have a time. I don't bother about all those things. नहीं, मेरे पास समय नहीं, इन सारी चीजों के बारे में मुझे फिक्र नहीं। You take care of my son. I'll take care of son. Both of you blame each other. और फिर दोनों ऐसा हो सकता है कि आप और हम एक दूसरे पर बस दोष लगाते रह सकते हैं। And tomorrow both of you will regret for your son's और life. फिर दोनों जो है अपने बच्चों के लिए शोक भी मनाएंगे। Kenneth Hagin, one of his book Kenneth about E. marriage Hagin and जी। divorce, he says there are 4 reasons for a divorce. और वहां पर उन्होंने एक पुस्तक में शादी और तलाक के बारे में एक पुस्तक उन्होंने लिखी, उसमें 4 ऐसे कारणों को There's बताया है। 4 reasons why there is a clash between a husband and wife. और 4 जो बताए गए हैं ऐसे दर्जे पति पत्नी के बीच में। And one reason he says is we don't know how to do with the children, what to do with the children. और उसमें एक वजह ऐसा बताया कि हमें पता नहीं कि बच्चों के साथ कैसे It's रवैया a दिखाना है। collective responsibility. Both father and mother should invest your time in the children's life and train them up. और ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि माता पिता दोनों अपना समय निकालें और अपने बच्चों को पालन पोषण करें, उनके लिए अपना समय निवेश करें। I told you, I'm not just took it today and I'm preaching this. और बस केवल लेके आज प्रचार नहीं कर रहे हैं। I can boldly tell this. I have experimented this. I have trained my children. Make sure they walk in the way of the Lord. They are trained in the way of the Lord. I release them to ministry. Now I have boldness to preach on this topic. और इस विषय पर सिखाने के लिए मेरे पास साहस है और मैंने समय लिया है और मैंने अपने बच्चों को सिखाया भी है कि कैसे प्रभु के मार्गों पर चला जाता है, उनका मैंने सही प्रकार से पालन पोषण किया है, इसलिए मेरे पास ये साहस है कि मैं इसका बड़े हियाव से प्रचार कर सकूं। Proverbs 29 verse 15. नीति वचन अध्याय 29 उसका 15वां वचन। The rod and reproof gives wisdom, but the child left to himself bringeth his mother to shame. और 29वां अध्याय उसका 15वां वचन ऐसा कहता है कि छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वो अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। The child who is not corrected, the child who doesn't give respect and reverence to the parents, in future if they are not trained, they bring shame to the mother. और एक बच्चा जिसे सिखाया नहीं जाता है, बस उसे यूं ही छोड़ दिया जाता है, तो आने वाले दिनों में भविष्य में वो अपने माता पिता के लिए शर्म का कारण बनेगा। And verse 17 says, correct your son, he shall give you rest
and he shall give delight unto thy soul. और 17वां वचन ऐसा कहता है कि अपने बेटे की ताड़ना कर, तब तो उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। So if you don't correct, what happens? तो यदि अब ताड़ना देते, सुधारते नहीं, If तो you क्या होगा? don't use rod and reproof, what happens? और यदि आप छड़ी और डांट को इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होगा? Many parents are worried that children have got into the bad habits, और अनेकों माता पिता चिंतित है, उनके बच्चे जो बुरी आदतों के शिकार बन got गए into हैं sinful habits. और पाप में आदतों के They शिकार बन go गए to हैं police station and court. They're running here and there. और बस अदालत और पुलिस चौकी के बस वो चक्कर Shame काटते to the रहते family. हैं। अपने परिवार के लिए वो लज्जा का Even in कारण the बने। old days, there is no rest for them. और देखते बुढ़ापे के दिनों में उनके लिए कोई चैन और आराम नहीं होता They blame the children. They blame everybody. और बच्चों पर इसका दोष लगाते हैं, वे सबों पर दोष लगाते You हैं। should believe your children is a gift given to you by God. और आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके बच्चे परमेश्वर की ओर से आपको दिए गए एक भेंट थे। You cannot blame anyone. आप किसी और पर दोष नहीं लगा सकते। Every child is born with the foolishness bound up with the heart. और हर एक बच्चा जिसने जन्म लिया है उसके दिल में से मूर्ता बंधी हुई If you है। don't use a rod of correction, you are responsible for the future, and tomorrow there is no rest for you and there is a shame for you. और यदि आप सुधार की छड़ी का आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो आने वाले भविष्य में आपके लिए कोई चैन नहीं रहेगा और आप ही उनकी लज्जा का कारण बनोगे। I'm not saying you should beat them every day. और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि हर दिन आप उनको मारो पीटो There is no need to beat them. Maybe once or twice you beat them, that's enough. और ज्यादा मारने पीटने की जरूरत नहीं, एक आध बार यदि उन्हें हम पीट देते हैं तो बस काफी है। Billy Graham said like this. रेवरेंड बिली ग्राहम जी ऐसे कहते हैं। His son, spat on his face. और यदि एक बेटा अगर Spat, थूक दे yeah, spit on his face. उनके चेहरे पर, Yeah. And he said, I bet him so much. From that day, he knows he will not spit, not only on my face, he will not spit anywhere in the floor also. और ऐसा वैसे करें कि ताकि वो कहीं भी फर्श पे कहीं दूसरी बार थूके नहीं। One treatment enough in the right time when they are young, maybe 2 years, 3 years, or 4 years, that's enough for them. They know, my God, when they look at your face, no, I should not do it. Daddy is angry, mommy is angry. और ऐसा उन्हें अनुशासन करना चाहिए कि बस एक ही बार वो देख ले तो समझ जाना चाहिए, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो माता पिता को तकलीफ होगी। That is a language they understand. और यही वो भाषा है जो वो समझते हैं। Train them to give respect to you. और उनको सिखाओ कि वो आपका आदर सत्कार करें। Train them to give, especially mothers, train them to give respect to father. और विशेष करके जो माएं जो हैं उनको ऐसा प्रशिक्षण दो कि अपने पिता का सम्मान करें। Train them to give respect to mothers. और जो पिता हैं उनको प्रशिक्षण दो कि अब माओं का सम्मान वो करें। If you train them to give respect to to the parents, and they'll give respect to the elders in the church. They'll be trained to give respect to the elders wherever they go. और यदि उन्हें एक दूसरे का जैसा आदर सम्मान करना सिखाया जाएगा तो जहां कहीं भी वो जाएंगे बुजुर्गों का वो सम्मान करेंगे। And those children, if you train them to give respect, when they go to school, they'll obey their parents. They'll finish the homework, everything. और यदि वो बच्चों को आदर सम्मान करना सिखाया जाएगा तो वो अपने स्कूल में भी जाकर आदर सम्मान करेंगे और सारी चीजों को पूरा करेंगे। The teachers will love your children more than other children. और वहां के जो टीचर हैं आपके बच्चों को दूसरे बच्चों की तुलना में ज्यादा प्यार करेंगे। If you don't train them to give respect and reverence, और यदि आप उनको सिखाएंगे नहीं आदर सम्मान करना, there will be a rebellious children in the school. They will not obey to the teachers. तो वे अपने पाठशालाओं के बहुत ही जिद्दी बच्चे ठहरेंगे और टीचर लोगों की सुनेंगे भी नहीं। Nowadays, teachers are not allowed to give punishment for children. और इन दिनों में तो देखते हैं कि टीचरों को इजाजत ही नहीं है कि अपने विद्यार्थियों if को you बच्चों don't train them, I tell you, maybe for a few days they will bear your children. At last they'll call you. We'll give transfer certificates. Take your child and go to one more school. और यदि आपके बच्चे ज्यादा बिगड़ जाते हैं तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, वो आपको बुलाएंगे और कहेंगे कि अपने बच्चे को लेकर किसी और स्कूल में जाओ। This is a basic foundation to receive the knowledge of God's word. और यही मुख्य बुनियाद है परमेश्वर के वचन के जरिए उस ज्ञान को पाने की। Second, दूसरा, what we should do? हमें क्या करना First, चाहिए? train them to give reverence and respect to you and reverence and respect to God. It's a foundation for them to receive the knowledge. और सबसे पहले उनको आपका आदर सम्मान करना, भी परमेश्वर का आदर सम्मान करना सिखाओ, यही ज्ञान को पाने की बुनियाद है। Proverbs 22 verse 6. और नीति वचन का